everyone, I am Bharti Sharma, your spoken English educator. And before I start with anything else, I want to ask you one thing. How are you all? How are you feeling today? How have you been lately? Now you must be thinking, ma'am, why are you asking about our well-being? Of course, you're my students and this is my duty to ask to you, right? That I hope you're doing well. आप सब अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे हो, ठीक हो, हेल्दी हो, फाइन हो, राइट? ये सब पूछना मेरा बनता है, राइट? सो इसी चीज से आज का टॉपिक भी डिस्कस हो जाएगा. आपकी हेल्थ से रिलेटेड हमारा टॉपिक है आज. Must be thinking how. So now let me tell you that today we're going to discuss about a very important topic and a fresh topic. That means today I'm going to tell you 10 new ways to ask how are you, right? 10 ways of asking how are you. आज हम ये discuss करने वाले हैं. Instead of always saying how are you, how are you, how are you, there are plethora of ways that you can ask about the person's well-being, right? इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप सामने वाले से ये पूछ सकते हो कि वो कैसा है. ठीक है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ 10 नए तरीके किसी से भी उनका हाल चाल पूछने के लिए. So I'm sure this is going to be one of the most interesting classes again, and definitely you can use all of these things in your day-to-day life. So without wasting any time, let's get started with the class. All right, my lovely students, let's understand this thing. Here you go with the very first one, which is, how are you feeling today? How are you feeling today? कैसा लग रहा है आपको? This is the very first way of asking how are you. ठीक है, how are you के अलावा पहला तरीका जो मैंने आपको बताया है वो है how are you feeling today. आपको कैसा लग रहा है आज? कैसे हैं आप? इसका पूछने का मतलब how are you से ही है. तो हम इसको कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं. This question is specific to how the person is feeling on that particular day. ठीक है, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली हम तब पूछते हैं जब हम किसी से पूछ रहे हैं उस पर्टिकुलर डे पे उसको कैसा लग रहा है. जैसे हम ज्यादातर इसको पूछ सकते हैं आपका बर्थडे वाले दिन, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कैसा लग रहा है आज, राइट? सो नेक्स्ट इज हाउ आर यू फीलिंग टुडे. इसका मतलब होता है मीन्स समथिंग लाइक हाउ डू यू डू, हाउ डू यू फिजिकली फील, फिजिकली आपको कैसा लग रहा है, लाइक सिक, बीमार तो नहीं फील हो रहा है. while how do you feel today could mean how do you feel about today, right? अगर हम पूछ रहे हैं how are you feeling today, मतलब हम किसी से उसका लाइक फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं कि वो बीमार तो नहीं है, उसको अच्छा लग रहा है ना, हेल्दी फील कर रहा है. बट हम पूछते हैं अगर how do you feel, how do you feel, तो मतलब that means we are asking about the particular day. Clear? So this is the very first way. Instead of asking about the how are you, you can go with how are you feeling today. Is it clear? Let's move ahead. All right, students. So here you go with the second up. That is, how have you been lately? How have you been lately? Come on, मेरे साथ दोबारा कहिए इसको. How have you been lately? How have you been lately? ठीक है, ये है आपका सेकेंड तरीका हाउ आर यू कहने का, और इसका मतलब क्या होता है चलिए समझते हैं. दिस क्वेश्चन इज ब्रॉडर एंड कैन रेफर टू हाउ द पर्सन हैज बीन डूइंग इन जनरल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ब्रॉडर वे में हम इसको ज्यादातर तब यूज करते हैं जब हम पूछना चाहते हैं कि पर्सन जो है आपके जिससे भी आप पूछ रहे हैं वो जनरली इतने लंबे टाइम से क्या चल रहा है, लाइक नॉर्मली क्या चल रहा है, जो बहुत नॉर्मली वे में पूछ सकते हो आप. Perhaps you are being asked how have you been doing this since the last time you saw each other, or maybe since the last time you spoke on the phone. इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन से आप काफी लंबे टाइम से नहीं मिले हो, just in case let's suppose there is a friend of yours, कोई फ्रेंड है आपका जिससे आप एक महीने से नहीं मिले हो. ठीक है, तो एक महीने पहले आप उससे मिले थे या एक महीने पहले आपकी उससे फोन कॉल में बात हुई थी, वो यहाँ पे कहीं नहीं रहता, वो कहीं बाहर रहता है, मे बी बैंगलोर, अमेरिका, पुणे, इस तरीके, चंडीगढ़, इंडिया में मान लीजिए कहीं पर रहता है तो ठीक है, तो बाहर कहीं रहता है, आपकी डेली बेसिस पर बात नहीं होती है, तो अब आप उससे पूछ रहे हो हाउ हैव यू बीन लेटली. ठीक है, तो कैसा चल रहा है, तब से लास्ट टाइम से बात की थी अब तक क्या नया हुआ, क्या चल रहा है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप पूछना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो हाउ हैव यू बीन लेटली. दोबारा बोलिए मेरे साथ, हाउ हैव यू बीन लेटली, हाउ हैव यू बीन लेटली. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं.
So what does that mean? Let's understand this as well. How are the things going for you is a way to ask someone's general situations or circumstances. ठीक है, ये जब हम सवाल पूछते हैं हाउ आर द थिंग्स गोइंग फॉर यू, ये एक हम इसको तब पूछते हैं जब जनरल सर्कमस्टांसेस के बारे में, जनरल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसको पूछते हैं. ठीक है, इट कैन बी यूज्ड इन अ कैजुअल और फॉर्मल सेटिंग एंड इज अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे टू चेक इन विद समवन एंड शो दैट यू केयर अबाउट देयर वेल बीइंग. ठीक है, ये क्या है, ये कैजुअल सा एक फॉर्मल सी सेटिंग है जिसे आप फ्रेंडली मैनर में बहुत पोलाइटली वे में आप पूछ सकते हो कि कोई कैसा है, हाउ इज समवन. और ये भी दिखाता है कि आप उसकी बारे में थोड़ा सोचते हो, उसकी केयरिंग वे से थोड़ा सा आप इस बारे में सोचते हो. तो आप पूछते हो हाउ आर यू, हाउ द थिंग्स गोइंग फॉर यू, हाउ आर द थिंग्स गोइंग फॉर यू. क्लियर? सो दिस वाज द थर्ड वे. लेट्स मूव अहेड. All right, students, so here you go with the fourth one, which is how is life treating you? How is life treating you? Now, हम ये कहाँ यूज करते हैं, चलिए समझते हैं. This question is more informal and friendly and ask about the person's overall experience of life. ठीक है, तो ये सवाल हम कहाँ पे इनफॉर्मल वे में, फ्रेंडली वे में पूछते हैं. किसी से पर्सन के ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम बात पूछना चाहें तो हम बोल सकते हैं हाउस लाइफ ट्रीटिंग यू. क्लियर? नाउ हाउस लाइफ ट्रीटिंग यू इज अ वे टू आस्क समवन अबाउट देयर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू. This question is more casual and friendly than simply asking how are you. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ज्यादा कैजुअल, थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली लगता है. हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू, इंस्टेड ऑफ ऑलवेज आस्किंग हाउ आर यू, यू कैन डेफिनेटली use it and it implies a more open and meaningful conversation. अगर आप हर टाइम हाउ यू बोल रहे हो ना, उससे बेटर है आप ये वाला बोल लीजिए. इससे क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि आप मतलब ओपन हैं, कि आप कॉन्वर्सेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कि मतलब हाँ ठीक है, अगर वो बात करते हैं, वो बात करना चाहते हैं, तो अब डेफिनेटली वो शो करता है कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं कॉन्वर्सेशन के लिए. ठीक है, सो दिस इज द मोर मीनिंगफुल एक्सप्रेशन आई वुड से दैट यू कैन डेफिनेटली यूज हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू. क्लियर? All right, moving on. It shows that you care about the person's well-being. ये भी दिखाता है कि वो दिखा रहा है कि आप उसकी well-being के बारे में केयर करते हो. And are interested in hearing about their experiences, good or bad. और आप बहुत interested हो उनके experiences को जानने के लिए, whether good है, bad है, जैसे भी experiences है, you are open to understand and open to hear them out. Clear? Next step that we are having is the fifth one, which is what's new with you. What's new with you? That's the fifth way of asking how are you. What's new with you? How are you? Hi. What's new with you? So this is how you can ask it. So this question invites the person to share any recent news or updates they may have. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये इनवाइट करता है सामने वाले को ये करने के लिए कि उनकी लाइफ में कुछ भी अगर नया हुआ है, कोई भी अपडेट है, तो वो आपको वो बता सकते हैं. राइट? सो डेफिनेटली यू कैन यूज दिस विद एनीवन यू वांट टू यूज. एंड इसका यही मतलब रहेगा कि आप उनकी लाइफ में अगर कुछ नया चल रहा होगा तो वो बता देंगे, नहीं चल रहा होगा तो दे कैन से नो नथिंग, देयर इज नथिंग न्यू, इट्स द सेम बोरिंग लाइफ, यू कैन से. राइट? सो व्हाट्स न्यू विद यू, दिस अनदर फ्रेज. This is the way to ask someone if there have been any recent updates or changes in their life. This question is more informal and friendly than simply asking how are you, and invites the person to share any news or updates they may have. All of these things are similar to each other. It's a good conversation starter. हाँ, ये है एक अच्छा पॉइंट कि इसमें कि ये एक अच्छा कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है and can lead to a more meaningful discussion. और ये अगर इस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो तो ये मीनिंगफुल डिस्कशन में भी बात जा सकती है. about the person's recent experiences, आप पर उस person के recent experiences जो भी रहे, whether they may be positive or negative, whatever it is. It's just that if you are using this phrase to ask someone that what's new with them, that means you are opening up yourself to hear them out about their experiences, about their new life, about their updates, whatever the change they are facing right now. You are just opening to up that thing, right? So ये एक तरीका है, इसको आप definitely use कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. All right, students. So here you go with the next one. That is, how are you holding up? How are you holding up? Now, this question is often used when someone is going through a difficult or a challenging time
and asks about their emotional well-being. ठीक है, ये क्वेश्चन आप तब पूछते हो जब कोई किसी डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा हो, कोई बहुत चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है, तो आप पूछ सकते हो, या उसके इमोशनल वेलबींग के बारे में आप केयर करते हो तो आप इसको ये फिर यूज कर सकते हो. ये एक तरीका है पूछने के लिए कि आप उसकी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशंस जो भी हैं आप उसके बारे में जानना चाहते हो, उससे पूछना चाहते हो कि इज एवरीथिंग ऑल राइट एंड एवरीथिंग राइट. This question acknowledges that the person may be going through a tough time. ये question ये भी बता सकता है कि वो person एक बहुत tough time से गुजर रहा है and shows that you are care about their emotional well-being. Clear है? It's a more empathetic and supportive question than simply asking how are you and implies person may be dealing with stress or एडवर्सिटी. ठीक है, अगर कोई एडवर्सिटी मीन्स पेन से. ठीक है, अगर कोई पर्सन आपको पता है कि जस्ट लेट्स सपोज आजकल के बच्चे ब्रेकअप से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं, ब्रेकअप, स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्टफ्स लाइक दैट. सो लेट्स सपोज आपका कोई फ्रेंड है जो पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस था, अचानक से उसके मार्क्स काफ़ी कम आ गए हैं, so definitely उसको धक्का लगेगा. And if the person is feeling with the depression or maybe having a lot of stress और ऐसे में अगर उसका कुछ और भी गलत हो जाए, so definitely you can say how are you holding up, like is everything okay, like इस तरीके से आप उससे पूछ सकते हो. इसका मतलब है कि आप उसकी इमोशनल वेलबींग के बारे में केयर करते हो, राइट, आप उसके बारे में चिंता करते हो तो आप पूछ रहे हो. ठीक है, हाउ आर यू इज जस्ट नॉट अ फ्रेज. हाउ आर यू का मतलब सिर्फ ये नहीं है अपने फॉर्मल एक तरीके, एक पता है क्या होता है कि आप मैं आपको क्यों बता रही हूँ 10 तरीके. एक आप चीज समझे कि अगर आप सिर्फ हाउ आर यू बोल रहे हो जो आपको बचपन से सिखाया गया है, आप हमेशा ये बोलते हो, तो एक फॉर्मेलिटी लग जाती है एक पॉइंट पर. ठीक है, एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ मिले हैं तो डेफिनेटली उसने पूछ लिया हाउ आर यू, मैंने बोला ठीक है. ऑफ कोर्स अगर आप कोई आपसे बोल रहे हो हाउ आर यू, तो डेफिनेटली आपको जाके पूरी सारी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स तो आपको डिस्कस नहीं करने वाले. तो देर आर सम प्लेथोरा ऑफ वेज जिसको आप यूज कर सकते हो उनसे बात करने के लिए, अगर आप एक्चुअल में उनसे बात करना चाहते हो. सो डू यूज दीज थिंग्स, क्योंकि अगर आप ये यूज नहीं करते हो तो सामने वाले को लगता है कि फॉर्मेलिटी हो रही है, हम आपने पूछे हालचाल, हमने बता दिया और हो गई बात खत्म. तो दैट्स द एंडिंग थिंग. ठीक है, सो डोंट यूज दिस थिंग. Always try to do something new with your thing. If you are learning anything, try to imply that, and that's how you always grow. Clear? So I hope you're getting this thing. Let's move ahead. All right, students, now here you go with the 7th one, which is how are you coping? How are you coping? Now ये coping है, ठीक है, coping. इसका कहीं ना कहीं पहले वाले से थोड़ा सा रिलेशन है जो मैंने आपको 6th बताया था, उसी से कहीं ना कहीं मैच करता है. इसका मतलब भी ये कोपिंग का मतलब भी इट्स काइंड ऑफ कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से अगर गुजर रहा है तो उसके रिगार्डिंग आप पूछने की कोशिश कर रहे हो. दिस क्वेश्चन इज यूज्ड व्हेन समवन इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम. दैट्स व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू. ठीक है, अगर कोई पर्सन बहुत टफ टाइम से गुजर रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हो. एंड आस्क हाउ दे आर मैनेजिंग और डीलिंग विद द सिचुएशन. आप पूछ सकते हो कि आप वो कैसे डील कर रहे हैं सिचुएशन से, कैसे मैनेज कर रहे हैं हर एक चीज को, इस रिगार्डिंग आप इससे पूछ सकते हो. ठीक है, it's a way to ask someone how they are managing or dealing with the difficult situations or stress in their life. Clear? This question shows that you care about their well-being and are interested in understanding how they are handling the challenges they are facing. Clear hai? And moving on, it's more targeted and specific question that's simply asking how are you and can help you open up a more meaningful conversation with the person's coping mechanisms and support system. ठीक है, इन शॉर्ट इसका कहने का सिर्फ वही मतलब है. अगेन, इफ द पर्सन इज डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अब आप पूछ रहे हो हाउ यू कोपिंग, दैट मीन्स आप पूछ रहे हो कि वो पर्सन उस चीज को कैसे मैनेज कर रहा है, उससे कैसे डील कर रहा है. इफ ही और शी वांट्स एनी काइंड ऑफ हेल्प, यू कैन हेल्प देम. इट्स अ काइंड ऑफ आप फिर से एक ओपन कॉन्वर्सेशन देने की कोशिश कर रहे हो, दैट यू आर देयर टू एटलीस्ट लिसन देम. इफ यू कांट हेल्प देम, यू लिसन देम. ठीक है, आज के टाइम पे द थिंग इज दैट पीपल ऑलवेज जस्ट वांट समवन हु कैन लिसन देयर प्रॉब्लम्स. दैट्स अ फैक्ट, आई एम टेलिंग यू. क्लियर? सो डोंट ऑलवेज बी रेडी टू गिव यू द सॉल्यूशंस. ऐसा पर्सन मत बनिए जो हर टाइम सॉल्यूशंस देने के लिए रेडी रखे. ऑब्वियसली उनके पास कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस होंगे, बट try to be more of the person who listens to their everything. Clear? This is how it's supposed to be. All right, so here you go with the 8th one, which is how's your day been so far? How's your day been so far? Now, this is a very professional, I would say, professional, friendly, everything kind of sort of
थिंग्स, तो आप ये भी बोल सकते हो, हाय हाउज योर डे बीन सो फार, कैसा रहा आज का दिन, हम ये पूछते हैं ना कई बार, सो इसका यही मतलब हुआ, हाउज योर डे बीन सो फार, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज मोर स्पेसिफिक टू द पर्सन्स डे एंड asks about their experiences and activities up to that point, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि उस पर्सन का दिन, पूरा दिन कैसा रहा, उसने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए, क्या क्या एक्टिविटीज करी हैं पूरे पूरे दिन में। how's your day been so far is a way to ask someone about their day has going up until the correct moment, अभी तक उन्होंने जो कुछ भी किया होगा उसके बारे में पूछ रहे हो। दिस क्वेश्चन इज अ फ्रेंडली एंड कैजुअल वे टू चेक इन विद समवन एंड सी हाउ दे आर डूइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्लियर। एंड इट्स ऑफन यूज्ड एज अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर एंड कैन लीड टू द डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन अबाउट द पर्सन्स डे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक फिर से एक तरीका है, देखिए कितनी बार भी मैं आपको जितने भी तरीके बताती हूँ हाउ आर यू कहने के, वो सारे ही तरीके इस तरीके के होंगे कि आप कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो इसलिए इसको यूज कीजिए। आप हिंदी में पूछते हो ना कि कैसा रहा आज का दिन, सब बढ़िया, तो चाहे उनके दिन में कुछ बढ़िया हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप यू शुड बी ओपन टू दैट थिंग, राइट। यू शुड बी ऑलवेज यू नो ऐसा बिहेव कीजिए कि आप रेडी हो चीजों को सुनने के लिए, राइट। इफ यू आर डेफिनेटली यूजिंग दिस थिंग, सो बी रेडी with all of the things they're going to tell you, clear? So otherwise, if you don't want to listen, like whatever they have been through, whatever, how was the day and everything, so don't ask them, right? Don't ask this question, okay? Moving on, next up that we're having is ninth up, that is, how are you managing with? How are you managing with? Now, this question is more targeted and specific and asks about the person's ability to handle a particular situation or challenge. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ज्यादा टारगेट करता है, बहुत स्पेसिफिक है इस चीज के लिए कि पर्सन की एबिलिटी कैसी है, कि वो सिचुएशंस को कैसे हैंडल करता है और वो कैसे उस चैलेंजेस को हैंडल करता है, ठीक है। दिस इज टिपिकली यूज्ड एज अ फॉलो अप क्वेश्चन। ये कैसा है, फॉलो अप क्वेश्चन है टू इंक्वायर अबाउट समवन इज हैंडलिंग अ स्पेसिफिक सिचुएशन और चैलेंज दैट दे मे बी फेसिंग, क्लियर है। So it can help to open up a more targeted and meaningful conversation about the person's experiences and coping mechanisms related to the particular situations, ठीक है। So again, यही situation में अगर आप पूछना चाहते हो किसी person ने कोई situations को कैसे handle किया, कैसे manage करते हैं, कैसे challenges को accept करते हैं, and then how they are actually managing with all of the things. So this is how you can ask to them, clear है। Moving on, last but not least that we are having in a row, which is what's been on your mind lately? What's been on your mind lately? That's the 10th way of asking, how are you? So this question invites the person to share any thoughts or concerns they may have been thinking about recently. ठीक है, ये क्वेश्चन इनवाइट करता है उन पर्सन को कि आप उससे शेयर कर सकते हो किसी भी तरीके के थॉट्स को, कंसर्न्स को, दे में हैव, जो भी उनके पास दिमाग में होंगे और जो भी वो सोच रहे हैं आजकल में, तो वो आपसे रिसेंटली शेयर कर सकते हैं। What's been on your mind lately is a way to ask someone about the things they are occupying their थॉट्स एंड अटेंशन, ठीक है। ये पूछने का ही तरीका है कि वो उनके माइंड में क्या ऑक्यूपाई चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस बारे में, इस बारे में कहाँ पे उनका ध्यान है, कहाँ उनके टेंशन है, तो ये भी एक तरीका होता है, क्लियर है। सो दीज वर द 10 ways of asking how someone is. So moving on, and with this thing we have come to the end for this class. I hope you've got 10 new ways, of course, and I'm hoping that you're going to use all of these things in your day-to-day life. Please do use them. With this thing, I'm going to meet you in my next class. Till then, stay connected, be happy, keep learning and keep practicing. Bye bye.